پاکستان نے وہ کون سی ایسی کل چین بنائی جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کوارڈینیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ABC ایک چین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مودی پہلے دن سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس رافیل آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ خود بخود جو ہے وہ جیت جائیں گے اور سب کچھ ان کے قدموں میں آ جائے گا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور جنگی تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا کہ جو بھارتی خواب ہیں ان کو J10C نے اپنے قدموں تلے کچل دیا۔ پاکستان نے وہ کون سی ایسی کل چین بنائی جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اور بھارت کا غرور جو ہے، اس کی اربوں کی سرمایہ کاری، رافیل کی چمک، سب کچھ راکھ میں بدل گیا۔ اور ادھر پاکستان نے ایک سسٹم، ایک ویژن، ایک جذبہ اور دشمن کی نیندیں حرام کر دیں۔ جی ہاں، نیندیں ایسی غائب ہوئی ہیں کہ پورے بھارت کے اندر جو ہے وہ نیند کی گولیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اور J10C نے PL-15 کا بٹن دبایا اور رافیل کی کہانی وہی ختم ہو گئی جہاں سے اس کی قیمت شروع ہوتی ہے، یعنی کہ $200 ملین۔ اب انڈیا کی حالت کچھ یوں ہے کہ سانپ جو ہے ان کی نظر میں وہ بھی نہیں مرا اور لاٹھی بھی ان کی ٹوٹ چکی ہے، اور چین کی مسکراہٹ اتنی وسیع ہے کہ گلوبل ٹائمز بھی ڈاکومنٹری پہ ڈاکومنٹریاں بنا رہا ہے اور پاک فضائیہ نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ صرف مہنگے ہتھیار نہیں بلکہ دماغ، جذبہ اور سسٹمز کی کوارڈینیشن ہی اصل طاقت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کوارڈینیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ABC ایک چین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور پاکستان نے اس کل چین سے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مئی 2025 میں ہم نے ایک ایسا ناقابل بیان فضائی جھڑپ دیکھی کہ ایک سمارٹ سسٹم کے ساتھ اویکس زمینی رڈار اور فائٹر جیٹ جس کے اندر PL-15 جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ ایک الیکٹرونک زنجیر سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک کو ایک چیز نظر آ رہی تھی، دوسرے کو دوسری چیز نظر آ رہی تھی اور تیسرے کو تیسری چیز نظر آ رہی تھی، لیکن پہلے نے گائیڈ کیا، دوسرے نے بٹن دبایا اور تیسرے نے اس کو منزل تک پہنچایا، اور ان سب نے مل کر ایک کل چین ایسی ترتیب دی جن کی کوارڈینیشن نے دشمن کی صفوں میں ماتم برپا کر کے رکھ دیا۔ اور بیونڈ ویژول رینج یعنی بصری حدود سے باہر کیا گیا یہ حملہ، جہاں دشمن کو یہ بھی نہ پتا چل سکا کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کارروائی نے ثابت کر دیا کہ جنگوں میں صرف مہنگے ہتھیار ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مقابلے میں ان کو چلانے والے، ان کا دماغ، ان کا جوڑ توڑ، اس کی سمجھ، اس سب مربوط سسٹم کو بنانے کے بعد ہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس جھڑپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آج کی جنگ صرف بندوق سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے جو الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر جذبہ، جرأت اور شجاعت کا بھی ہونا لازم ہے۔ پاک فوج نے بیان المرصوص کے ذریعے بھارت کی شکست ایسی اس کو دھول چٹائی کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی متعارف ہو چکی ہے۔ J10C کی شاندار کامیابی پر چین کے سرکاری ٹیلی ویژن میں ایک ڈاکومنٹری نشر کی جا رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاک فضائیہ کے پائلٹس نے ان طیاروں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، کس طرح یہ اس فائٹر کی پہلی جنگی کامیابی تھی جو کہ اپنے سے انتہائی بالا تر جہاز جس کو کہا جاتا ہے ملٹی رول فائٹر جیٹ، اس پر یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ اور چینی میڈیا خاص طور پہ گلوبل ٹائمز نے اسے چین کی بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہ ملائیشیا میں جاری عالمی دفاعی نمائش جسے لیما 2025 ہے میں جہاں اپنی جنگی صلاحیت اور مناسب قیمت کے باعث J10C مرکز نگاہ بن گیا، وہاں پہ پاکستان کے ABC جنگی نظام کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور جس کی بدولت J10C نے کامیابی حاصل کی اور رافیل کو تباہ کر دیا۔ اصل میں
पाकिस्तान का डाटा कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक छोटा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर इसको मुकम्मल दस्तरस हासिल है। वहां इंडिया के पास मसला यह है कि इस्राएली हथियार, फ्रांसीसी हथियार, रशियन हथियार, अमेरिकन हथियार, इतने हथियार मिल गए हैं कि उनकी आपस में इंटीग्रेशन, उनको आपस में जोड़ना, उनको एक निजाम के साथ मरबूत करना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। और अरबों डॉलर देने के बावजूद फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है वो चीन ने 2000 की दहाई के अवाइल में अमेरिकी फजाइया के खिलाफ अपनी फजाई जंग छेड़ने के लिए तैयार किया था। और जो जमीनी बुनियाद पर एक रडार होता है, वहां से ट्रेस किया जाता है जितनी भी अर्ली थ्रेट्स होती हैं जहाजों के हवाले से। उसके बाद जो बी लड़ाका त्यारा जो फजा के अंदर मौजूद होता है और हवा के साथ ही वहां पे एक अवेक्स होता है, यानी अर्ली बोर्न वार्निंग सिस्टम, वो सी यानी अवेक्स वहां पे वो मौजूद होता है। और ये इन तीनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ग्राउंड बेस्ड रडार यानी जरूरी डेटा फराहम करते हुए दुश्मन के हवाई जहाज की शनाख्त करता है, उसको लॉक करता है और उसके बाद वो डेटा देता है अपने जहाज को, जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता और जिसको ये पता होता है कि मैंने ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए बटन दबाना है। बी लड़ाका फाइटर हदफ के हसूल के बजाय मिसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हुए महफूज फासले से मिसाइल लॉन्च करते हैं। जबकि सी जिसका एक इंतहाई अहम किरदार है, उन्होंने कहा ना कि उन्होंने पाकिस्तान का भारत ने अवेक्स जो है तबाह कर दिया, ड्रामा है सारे का सारा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको अवेक्स कहा जाता है, यह मुसलसल उस मिसाइल को हदफ की तरफ ट्रैकिंग करने के लिए उसको मुसलसल उसको डाटा फराहम करता है और उसको हदफ तक पहुंचाने के लिए अपनी ट्रैकिंग को बरकरार रखता है और मिसाइल को इसके हदफ तक ले जाता है। इस निजाम को नेटवर्क से चलने वाले कोऑपरेटिव जंगी मिशनों की तरफ एक कदम के तौर पे देखा जा रहा है, जो रवायती प्लेटफॉर्म्स पर मरकूज ऑपरेशन से हटकर चाइना स्पेस न्यूज ने इस पर रोशनी डाली कि किस तरह इस सिस्टम के इस्तेमाल से 5 इंडियन लड़ाका हथियारों को गिराया गया। जब तक राफेल ने मिसाइल का इसको पता चला, इसके पास रद्द अमल जाहिर करने में सिर्फ 10 सेकेंड बाकी थे और उस 10 सेकेंड के अंदर जो पायलट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट को इजेक्ट ही कर सकता था। कुछ मैनूवर करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए उसके पास टाइम मौजूद नहीं था। वो बेबस होकर सवाए तबाह होने के कुछ भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने आलमी अस्करी मामलात में कुछ नया कर दिखाया है और असल में इस कहानी में इन टेक्नोलॉजीज का मिलकर कोऑर्डिनेशन करना शामिल है। शेयर्ड डेटा चेन्स एंड कोऑर्डिनेशन वारफेयर के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होती है, जिसमें एक आलमी जीपीएस सिस्टम, दुश्मन की जासूसी और इनका पता लगाने के लिए आला दर्जे की टेक जैसे रडार, इंफ्रारेड और कैमरे की मौजूदगी, आजाद कंप्यूटर और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद और काबिल एतमाद सनती कारखाने और हुनर का होना लाजमी है। यकीनी तौर पे ये सिर्फ हार्डवेयर या हार्डवेयर की फतह नहीं है, ये इंसानी बर्तरी का सबूत है, ये अपने दिमाग की इस्तेमाल है जो पीएएफ के पायलट्स मुसलसल मैदान जंग में लाते हैं। और पाकिस्तान के पायलट्स को पहले दिन से ही इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने दुश्मन बहुत बड़ा है, एक के मुकाबले में 3 से लड़ने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वही ट्रेनिंग आज पाकिस्तान के पायलट्स को दुनिया के बेहतरीन पायलट्स की सफों में लाकर खड़ा करती है। जी हां, ये वो महारत है जिसने ताकत का तवाजुन यानी बैलेंस ऑफ पावर को पाकिस्तान के हक में चेंज करके रख दिया और इसने ही इंडिया की फिजाई तसल्लुत की हिकमत अमली को बेनकाब किया। फर्स्ट लॉक फर्स्ट टू किल थ्योरी ने हाफ स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर फैसला कुन वार किया और चीनी टेक्नोलॉजी ने मगरबी
फ्लैग शिप फाइटर को बेअसर कर दिया। हम कह सकते हैं कि राफेल का गिरना मगरबी फिजाई बर्तरी की कमजोरी को जाहिर करता है, या इसका मतलब यह भी हो सकता है कि चीन की फिजाई ताकत अब आलमी सतह पर जंगी तौर पर साबित हो चुकी है, यानी फिजाई बर्तरी की चादर अब मुकम्मल तौर पर मगरबी एरोस्पेस ताकतों के पास बाकी नहीं रही। राफेल को गिराना, जिसकी कीमत तकरीबन $200 मिलियन से ज्यादा है, एक J-10C के जरिए जिसकी कीमत तकरीबन $40 मिलियन से कम है, मगरिब के लिए एक खामोश पैगाम है और पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्ट्रेटेजिक फतह है। और मिशन के तकाजे मुख्तलिफ फिजाई अफवाज के मुख्तलिफ तरजीहात हो सकती हैं, जिनमें फिजाई बर्तरी, जमीनी हमला, जासूसी हो सकती है, जबकि J-10C का मुआजना दीगर लड़ाका हथियारों जैसे F-16 जोरो फाइटर टाइफून, राफेल या F-35 से किया जा सकता है। बेसिकली F-35 तो थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाएगी, F-35 का मुकाबला तो J-35 ही आके करेगा, लेकिन जो लीमा 2025 मलेशिया के अंदर हुई है उसमें J-10CE की अहमियत असले की आलमी तिजारत में बदलते हुए मंजरनामे की अक्कासी करती है। चीन की जदीद कम लागत वाले जंगजुओं की पेशकश करने की सलाहियत मगरबी और रूसी सप्लायर्स के दरीना तसल्लुत को चैलेंज करती है। दी ट्राइब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया ने चीन से J-10CE हासिल करने के लिए राब्ता किया है। एनिक चैंगडो एयरक्राफ्ट के हिस्से में 40% का इजाफा हुआ है। राफेल बनाने वाली डिसाल्ट एविएशन के शेयर्स के अंदर ऑपरेशन संदूर के बाद अच्छी खासी कमी देखी गई है और J-10 की जंगी कामयाबी ने चीन को एक मार्केटिंग बर्तरी फराहम कर दी है। इससे मगरबी दिफाई मंसूबा साजों में तशवीश पाई जाती है और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का मौजूदा बहरी बेड़ा, जिसमें 18 Su-30 MKMs और 8 F-18D हॉर्नेट्स शामिल हैं, जो अब बुरा हो रहा है और इसे एक नए मल्टी रोल फाइटर की जरूरत है। जनूब मशरकी एशियाई असर और रसूख के लिए एक अहम मैदान जंग है, जहां चीन, अमेरिका और रूस मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी कौमों की दिफाई पॉलिसियों की तश्कील के लिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन चीन की सस्ती मगर एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस मुकाबले को मजीद सख्त कर दिया है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी, हम मानते हैं ये चाइना की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि अगर मैं आपको एक पिस्तौल दूं कि ये पिस्तौल पकड़ें और जाएं और उसको ठोक दें, अब आप वो पिस्तौल लेते हैं, खतरों से खेलते हैं, उनके सिक्योरिटी दिफाई निजाम को ब्रेक करते हैं और उसको ठोक कर वापिस आते हैं, तो क्या उस ठोकने वाले का कोई क्रेडिट नहीं? सिर्फ और सिर्फ उस पिस्तौल का क्रेडिट है जो कि उस दुश्मन के पास मौजूद मशीन से उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर फिर भी उसकी गेम बच गई। तो समझने की बात है, समझें। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।